Hello students, myself Rakesh Misra. As you all know, our lesson cell, the unit of life is over. The last topic from the lesson was nucleus and chromosomes. And I hope the video for the nucleus and chromosomes are actually for the single video. I have explained about the nucleus and chromosomes. Now after the finishing of the lesson, it's time to revise the lesson thoroughly through the MCQs, because long and short type question are actually two more. So the long and short type question are revised after the end of overall syllabus, and it's time to begin the important question. I have selected the important MCQs from NCERT exemplar, from side book, as well as NCERT proper. So, without delay timing, let back over the board, let back over the question and explain thoroughly one by one with the exact answer as well as their explanation. I hope you have a pen paper regarding the note down of the important concept from the MCQs, and I hope you will able to solve that kinds of problems if they ask in the next upcoming examination. So without delay timing, let back over the question, and you should note down the important concept in your fair copy just after the end of lesson. Now back to the board and back to the different kinds of question. Now dear students, the question 1. Question 1 is, which of the following is not correct? Actually from the option you have to choose the incorrect option. So let us start with the question and their probable answer. Option 1 is Robert Brown discovered cell. So the option is actually wrong. Why wrong? Because Robert Brown was discovered the nucleus. Robert Brown, the name Robert Brown associated with the term nucleus. So the name of Robert Brown is not associated with the discovery of cell. So he was the he was credited to discovery of nucleus. Now back to the second option. Schleiden and Schwann formulate the cell theory. Schleiden and Schwann formulate the cell theory. Actually, Schleiden and Schwann both actually associate with the term cell theory. So the option is right. Virchow explain that cell form from pre-existing cell. Virchow explain that the cell form from pre-existing cell. The option is right. D. Unicellular organisms carries out its activities within a single cell. So all the option is correct except option number A. Option number A is incorrect. So you should choose the option number 1. Now back to the second question. New cells generate from. New cells generate from. Option A, bacterial fermentation, which is wrong. Actually, bacterial fermentation from the lactic acid. That is, there is a no any match of the question and there is a no correct statement. Bacteria are associated actually with the fermentation, that is actually related to the fermentation process, fermentation of lactic acid. रीजनरेशन ऑफ ओल्ड सेल्स, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है. प्री एग्जिस्टिंग सेल ये सही है. रुडोल्फ वर्चो ने एक्चुअली क्या बताया? न्यू सेल्स जनरेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ये ऑप्शन आपका सही है सी. ए बायोटिक मटेरियल्स, ये दूसरा फिनोमिनन है, ये एक्चुअल में है ही नहीं, इससे रिलेटेड, सेल से रिलेटेड है ही नहीं, ये इवोल्यूशन चैप्टर से है. इसको आप नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे अच्छे से. तो ये ऑप्शन जो है न्यू सेल्स जनरेट फ्रॉम, ये क्या हो जाएगा? प्री एग्जिस्टिंग सेल. ठीक है, ये बहुत अच्छा सा आपको मतलब आसानी से इसको आप फाइंड आउट कर लेंगे. ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं. नेक्स्ट क्या है? मैच द फॉलोइंग. ठीक है, आप कॉलम ए का मैच करेंगे, कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकेंड से मैच करेंगे. कॉलम फर्स्ट क्या है? क्रिस्टा या क्रिस्टी. मैंने बोला था क्रिस्टी और क्रिस्टा प्लूरल वर्ड है और क्रिस्टी सिंगुलर वर्ड है. ये माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है. तो ये ए का मैच जो है सेकेंड से हो गया. ठीक है. सिस्टर्नी किसका है? सिस्टर्नी जो है ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर गोल्गी बॉडी का है. यानी बी का जो मैच है वो किससे हो जाएगा? थर्ड से हो जाएगा.
और थैलेक्वाइड जो बच गया फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक ऑफ स्ट्रोमा, यानी सी का जो मैच है वो फर्स्ट से हो जाएगा। ये आपका एग्जैक्ट मैच है। इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं, ऑप्शन ये बदल जाए या इधर का कोई पोर्शन बदल जाए, तो आप इसको कॉन्सेप्ट बस क्लियर रहना चाहिए कि क्रिस्टी हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया पे होगा। ठीक है, इन फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बताया गया था ऐसे डिटेल स्ट्रक्चर। जब क्रिस्टी की स्टडी करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस तरह से जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज नोन एज क्रिस्टी। ठीक है, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया था। ये जो क्वाइन शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है किसके अंदर, ये दिख रहे हैं प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं थैलेक्वाइड। ठीक है, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, इसके ऊपर के लेयर को बोलेंगे, और ये जो पार्ट दिख रहा है उसको बोलेंगे थैलेक्वाइड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा सिस्टर्नी बताया गया था कि जो गोल्गी एपरेटस के अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं दैट इज नोन एज सिस्टर्नी। दिस इज द सिस्टर्नी। ठीक है, तो ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर है सिस्टर्नी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ न्यूक्लियस। कह रहा है कि सेल्स जो है, कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट छापना है। कह रहा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस होता है। तो एक्सेप्शन है आपका आरबीसी। न्यूक्लियस वाले पोर्शन में मैं बताता हूँ कुछ ए न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, और उसका जो ऑप्शन क्या है आरबीसी। आरबीसी क्या हो, वो ए न्यूक्लिएटेड है, उसमें न्यूक्लियस होते ही नहीं। ठीक है, आरबीसी ए न्यूक्लिएटेड है। इसके अलावा सीप्स ट्यूब भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, सीप्स ट्यूब भी ये न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव अ वेल डिफाइंड सेल वॉल। ये स्टेटमेंट गलत है ये भी। ठीक है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, ये आप सबको पता है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सी क्या है, इन प्रोकैरियोट देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये स्टेटमेंट सही है। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक गोल्गी बॉडी, ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है, ये फूड वैक्यूल, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्रोकैरियोट में नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स किस में नहीं होते हैं, प्रोकैरियोट में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। जितने भी आप मेम्ब्रेन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़े हैं ना, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये सब जो है प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, ट्रिक मैं क्या दे रहा हूँ नोट कर लो, आपको इन फ्यूचर काम आ जाएंगे। ट्रिक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जब आप लिखेंगे तो साथ साथ उसके नीचे यूकैरियोट लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, यूकैरियोट, और ई यू से आप ई एन को मिला लीजिए। यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। ये ई से यूकैरियोट और ई से एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम प्रोकैरियोट में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हु गैप सेल थियरी, सेल थियरी को किसने दिया था? ठीक है, क्या पूछ रहा है, ऑप्शन क्या दिया, स्लाइडेन एंड शॉन, यही है, बाकी सब आप ऑप्शन में जानते हैं। रूडोल्फ वर्चो एसोसिएटेड किससे, द सेल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, वॉटसन एंड क्रिक डीएनए डबल हेलिकल मॉडल दिया था जो तुम्हारे सिलेबस नहीं। ल्यूवेनहॉक, ये इन्होंने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किया था। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। स्लाइडेन एंड शॉन गैप द सेल थियरी। नाउ नेक्स्ट, सेल थियरी एक्सप्लेन दैट। अब सेल थियरी क्या एक्सप्लेन करता है, every organism consists the small unit that is known as cell. New cells form from pre-existing cell. Cells are independent from each others. देखो, अगर तुमको एक कॉन्सेप्ट जानना है, मैंने 5 कॉन्सेप्ट बताया था सेल थियरी का, जिसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट थे, लेकिन यहाँ बोथ का ऑप्शन कहीं दिया नहीं, इसलिए एक कॉन्सेप्ट अगर छाटना है तो वो सिर्फ यही है। पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, एवरी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट द स्मॉल यूनिट्स नोन एज सेल्स। यही पहला कॉन्सेप्ट है सेल थियरी का, और इसको अपने हिसाब से कॉपी में लिख डालना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अपने हिसाब से ही लिखना है। चलो आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, 7 नंबर। 7 नंबर क्या पूछ रहा है, टोल्ड, यहाँ कुछ भरेगा, इसमें से ऑप्शन में से छाटना है।
क्या ऑप्शन छाटना है? टोल्ड फर्स्ट the new cells arise from pre-existing cells, omni cellula e cellula का कॉन्सेप्ट, ठीक है, वीडियो लेक्चर में पढ़ा होगा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ सेल्स। तो इसमें आप ये चीज़ें क्लियर कर लेंगे कि किसने हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव सेल्स में ये टर्म दिया था, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, मीन्स सेल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या दिया, स्लाइडेन एंड स्वान, इससे तो कोई मतलब नहीं। इन्होंने सेल थ्योरी दिया था, बार बार अब नाम इसमें भूल जा रहे हैं। सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान। रूडोल्फ वर्चो ने ये टर्म दिया था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट में रखना है। द रूडोल्फ वर्चो वाज द साइंटिस्ट दैट गैप द न्यू सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो whatever the important concept regarding omnicellula e cellula, and the terms Rudolf Virchow associate with the omnicellula e cellula. वॉटसन एंड क्रिक, इनका नाम जो है डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए में आता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड मॉडल ऑफ डीएनए के साथ जोड़ा जाता है वॉटसन एंड क्रिक, जिसके बारे में डिटेल आप 12 में पढ़ेंगे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में बताया था, ये लिविंग सेल की डिस्कवरी किए थे। तो ये ऑप्शन जो है कहाँ क्या भरा जाएगा, यहाँ ऑप्शन में भरा जाएगा वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। आप यहाँ से चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, ठीक। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ऑफ इज दैट ऑफ, कह रहा है कि सबसे बड़ा सिंगल सेल क्या है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे बड़ा सिंगल सेल क्या है। साइनोबैक्टीरिया तो हो नहीं सकता, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? एक प्रोकैरियोटिक, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं। अमीबा ये भी नहीं है। एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ये सही है, ये आप उसमें भी पढ़े होंगे, मेजरमेंट ऑफ सेल की वीडियो पढ़ी होगी, इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच क्या है? सबसे बड़ा सिंगल आइसोलेटेड सेल्स। ह्यूमन नर्व सेल्स, ये लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ ह्यूमन है, नर्व सेल्स जो है लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल है। तो यहाँ पे ये आइसोलेटेड सिंगल लार्जेस्ट सेल्स क्या है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गेनिजम्स अमॉन्ग दीज डू नॉट हैव सेल वॉल, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनिजम्स है जिसमें सेल वॉल नहीं होता। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो म्यूरिन म्यूकोपेप्टाइड, एंड पेप्टाइडो ग्लाइकॉन, ये 3 अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बना होता है। म्यूरिन म्यूकोपेप्टाइड एंड पेप्टाइडोग्लाइकॉन से मिलके बना होता है, ठीक है। फंगस का सेल वॉल जो है होता है और वो काइटिन से मिलके बना होता है, काइटिन, ठीक है। और प्लांट का सेल वॉल सबको पता है, उसमें मेजर कंपोनेंट्स होता है सेलुलोज। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ख़त्म हो गई। एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अनफॉर्चुनेट, आप इसके बारे में पहले से जानते थे, लेकिन ये तीनों चीज़ें आपके नहीं मिल गई और उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है तो किससे होता है, किसका होता है। फंगस में सेल वॉल होता है तो वो किसका होता है। प्लांट्स में सेल वॉल होता है तो किसका होता है, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। 10. विच अमॉन्ग दीज इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, कह रहा है इसमें से कौन सबसे छोटा सेल है। तो यूकैरियोटिक सेल ये छोटा नहीं है, टिपिकल बैक्टीरियल सेल्स ये भी नहीं छोटा है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है सबसे छोटा और सेल्स है। और कंप्लीट सेल्स की बात करें तो पीपीएलओ स्मॉलेस्ट सेल है। लेकिन अगर हम वायरस सेल की बात करें, वायरस एक्चुअल में ए सेलुलर बॉडी होती है, ठीक है। तो वायरस सेल की मैं बात कर दूं, सबकी बात मैं बारी बारी से कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं यूकैरियोटिक सेल की बात कर दें तो यूकैरियोटिक सेल एक्चुअली जो इसका मेजरमेंट होता है वो होता है 10 to 20 माइक्रोन, 10 to 20 माइक्रोन, किसका? यूकैरियोटिक। टिपिकल बैक्टीरियल सेल्स यानी प्रोकैरियोट की बात कर दें तो 1 to 2 माइक्रोन, यानी कि ऊपर के कंपेयर में इससे 10 गुना छोटा होता है। पीपीएलओ की बात करें तो 0.1 माइक्रोन, यानी कि सबसे छोटा तीनों में तो यही है। लेकिन एक वायरस सेल की बात करें तो 0.022 to 0.2 माइक्रोन तक होते हैं। यानी कि अगर सबसे छोटे सेल की बात करें तो वायरल सेल, लेकिन ये ए सेलुलर बॉडी शेप है,
फिर भी ऑप्शन में दिया है, अगर इस तरह के ऑप्शन अगर अवेलेबल है क्वेश्चन में तो आप ऑप्शन डी ही पुट करेंगे, क्योंकि पीपीएलओ एक कंप्लीट सेल, अगर स्मॉलेस्ट कंप्लीट सेल पूछेगा और वायरस नहीं रहेगा तो पीपीएलओ है, बट यहाँ पे पीपीएलओ के साथ वायरल सेल है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो 11 पे आते हैं। 11 में क्या पूछ रहा है, राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर, कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है, तो 60s 40s ये तो होते नहीं है। ठीक है, 60s 40s ये जोड़ के 80s होता है, और 80s राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में 70s 30s, 70s 30s तो कोई मतलब ही नहीं, ये होता ही नहीं। 50s 30s, ठीक है, 50s 30s जो है ये 70s होता है, और यही प्रोकैरियोटिक सेल का स्पेशल फीचर्स होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इस पर आप फोकस आउट करेंगे। नेक्स्ट है राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, ऊपर बताया गया था 60s 40s, यानी कि ये ए हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के ये 80s होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इन प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियस इज, कह रहा प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स और डबल मेम्ब्रेन तो दूसरा कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लेक्स और डबल मेम्ब्रेन जो है ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, प्रिमिटिव टाइप होते हैं। कॉम्प्लेक्स और डबल मेम्ब्रेन का तो कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं। ठीक है, चलो प्रिमिटिव टाइप होता है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूकैरियोट, कह रहा है इसमें से कौन यूकैरियोट नहीं है। प्रोटिस्टा ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, कितनी बार बताया था इसको, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। प्लांट्स ये यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से। एनिमल्स भी यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से। बच गया साइनोबैक्टीरिया, ऊपर एक बार बताया भी था, साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गा इसमें आता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गा क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक है। नेक्स्ट की मैं बात करूं, अनलाइक ऑफ प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स हैव अ सेंट्रियोल एंड अ वैक्यूल। वैक्यूल पूछ रहा है कैसा होगा, स्मॉल होगा, लार्ज होगा, नो वैक्यूल्स और नन ऑफ दीज। कह रहा है कि प्लांट सेल्स में तो वैक्यूल्स होता है, एनिमल सेल्स में भी सेंट्रियोल्स होता है। प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल होता है और एनिमल सेल्स में भी सेंट्रियोल्स होता है। ठीक है, बट एनिमल सेल्स का जो वैक्यूल पूछ रहा है वो क्यों होता है और कैसा होता है, पहले तो कैसा होता है ये पूछा है। ठीक है, एनिमल सेल का जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल होता है, एनिमल सेल का जो वैक्यूल होता है वो ए हो जाएगा, स्मॉल होता है। रीजन क्या बताया था, एनिमल्स और हेट्रोट्रॉफिक, इट मीन्स वो अपना फूड नहीं बना पाता है। जब फूड नहीं बना पाएगा तो स्टोरेज की जो कैपेसिटी होगी वो ऑलरेडी बहुत कम होगी, स्टोरेज फूड स्टोर करने की जो एबिलिटी होगी और जो स्टोरेज उसका रूम होगा वो ऑलरेडी बहुत छोटा होगा। इसके कंपेयर में प्लांट सेल्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और जब ऑटोट्रॉफिक होंगे तो ऑलरेडी उसमें स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत बड़ी होगी, इसलिए प्लांट सेल में फूड वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। इसको आप जस्टिफाई भी कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का आप एक्सप्लेन भी कर लेंगे, सब लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है कि वाई एनिमल सेल्स, मतलब क्वेश्चन तो ऑप्शन में रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या भरना है, स्मॉल वैक्यूल। ठीक है, एनिमल सेल की केस में स्मॉल होता है, प्लांट सेल्स में तो फूड वैक्यूल तो बड़ा ही होता है। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा बाउंड ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट, कौन सा बाउंड भाई, मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसिंग है, इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स किसमें एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट में। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट इन किसमें, प्रोकैरियोट में, बाकी इन सब में होता है। चलो आते हैं 17, मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल्स कंपेराइज ऑफ, कह रहा है कि मेम्ब्रेन जो एनिमल सेल्स में होते हैं वो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रहा प्रोटीन बाई लेयर, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, फॉस्फोलिपिड ट्राई लेयर, नन ऑफ दीज। तो आपको क्या बताया गया था, आपको बताया गया था फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होते हैं, यानी लिपिड के बाई लेयर उसी को बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, और वो एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एनिमल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है। कौन, मेम्ब्रेन जो है, एंड ये कौन सा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स किससे है, वो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों का है। ठीक है, तो दोनों में फॉस्फोलिपिड जो है ये बाई लेयर्ड होता है। चलो आते हैं नेक्स्ट, लिपिड्स एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कैन मूव इन एंड आउट ऑफ एन एनिमल सेल्स थ्रू, कह रहा है कि लिपिड और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो इन और आउट किसके थ्रू होते हैं,
जब आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया गया था तो उसी में ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया था। लिपिड और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ये दोनों जो लायोफिलिक या इसको लाइपोफिलिक भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लाइपोफिलिक, जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, लाइपोफिलिक जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, वाटर सॉल्युबल नहीं, वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। जो आसानी से काम हो जाए उसको पैसिव बोलते हैं और बाकी को एक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये बाकी में ऑस्मोसिस, ये दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन, ये ऑस्मोसिस हो जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट्स ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी एंड को ट्रांसपोर्ट, जब दो सबस्टेंस एक साथ मूव करते हैं, ठीक है, एक लो हो और एक का कंसंट्रेशन हाई हो। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर है कि ये पैसिव डिफ्यूजन हो जाएगा। 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, पैसिव डिफ्यूजन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या 19, सेल वॉल इज, कह रहा है कि सेल वॉल कैसा स्ट्रक्चर है, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल, इम्परमिएबल, नन ऑफ दिस। देखो सेल वॉल पूरी तरह से इम्परमिएबल होता है, सेल वॉल के थ्रू तो कुछ भी नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन सेल वॉल के बीच में जो प्लाज्मोडेस्मेटा नाम का गैप होता है उसके थ्रू चीज़ें अंदर जाती है, तो उसके बाद क्या पड़ता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होता है, तो सेल वॉल इम्परमिएबल होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सेल वॉल क्या होता है, इम्परमिएबल। चलो आते हैं 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसमें से छांटना है कि कौन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सब जो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है, ठीक है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम, ये सब जो है क्लोरो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो 21 और लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। 21 में क्या पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, इसमें से लिपिड सिंथेसिस का मेजर साइट्स क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, पेरोक्सीसोम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको आप नोट कर लीजिए। और हमने पूरे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से पूरा सब सारी चीज़ें कवर कर लिया है। अब पूरा सिलेबस ओवर हो जाए तो फिर इससे हम लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप अनफॉर्चुनेटली उसको जो है अपने कॉपी में रैंडमली उसको नोट कर लीजिए, लाइव क्लास में उसको हम डिस्कस कर देंगे। थैंक यू।